like now currently talking about the show that you did recently, which was Ish Par Zor Nahi. So this show was loved so much. अभी भी show को इतना ज़्यादा याद किया जाता है offer होने के बाद भी. People have been requesting कि please season 2 लेकर आओ, and we have seen कि cast ने भी इतना ज़्यादा enjoy किया है. तो जब आपको पता चला था that this show is going off air, so what was your reaction to it? हमें तो बहुत दुख हुआ था. We all crying basically. I think everybody had tears in their eyes and we were like very heartbroken कि अभी इतनी जल्दी क्यों. अभी तो लोगों ने मतलब अभी तो हमें मौका मिला है लोगों के मतलब तक पहुंचने का. Basically for any show, you know, to reach the audience and connect with them takes a little time. So it was just within I think 6 months, less than 6 months, it got shut. Like, you know, they've just shut down the show, and which was very, I feel, unfair because even audience have some certain expectations. They start connecting with the characters, and we also enjoy the you know, the love and all this applause and all that we get, you know, the appreciation we get from the audience, from the viewers. It is so heartwarming. So I mean, it feels very sad that we have to somewhere just kind of disconnect. It's like suddenly kuch toot gaya, you know, and it's not a good feeling. And I know a lot of audience. I sometimes I mean, it's so amazing to know that, you know, how well the viewers connect. They feel like we are a part of their family, you know. Like they treat us like we are part of their family, or they become a part of our family. It becomes like that, you know, and they want to know more, and they love the character. It's such an amazing feeling, you know, nothing better than that. Trust me, this is I feel this is the perk of being an actor. This is the kind of love that we receive, really, I tell you. So I also feel कि अब मतलब कैसे वो एक रिश्ता जैसे फटाक से बीच में एक खत्म हो गया, because वो अब कहीं अब वापस नजर नहीं आने वाले, you know. But yeah, as individuals, yeah, we are always there for them, you know. But I'm just saying, as a character, कब वो कहीं खत्म हो गया, वापस नहीं आने वाला. So it's not a very good feeling. So, you know, ma'am, like when you were offered this character of Savitri, so what was that thing which attracted you to play this character and accept this character? What is that thing in this character that you like the most? Actually, the reason I fell in love with this character was that, you know, वो जो एक माँ की जो तड़प है ना towards her children, because I understand, I'm a mother too. I have 2 kids, and I understand exactly how it feels to be far from them, because for a long time I'm away from them working. So, you know, I somewhere was able to relate to the pain and the desperation this you know, character was going through, especially looking deeper into it, because mine, so I can visit anytime, I can call anytime, we are on video call every day. But ठीक है, shoot है तो दूर हूँ, फिर बीच में जैसे 2 दिन गैप हुए, I can go and meet them, you know, ऐसा हो जाता था, but not like indefinitely मिल नहीं रहे हैं. और यहाँ पे तो 30 years 20 साल तक आप मिले नहीं हो अपने बच्चों से. You know what I'm trying to say? 20 साल तक आप बच्चों से नहीं मिले हो, आपको मिलने का रास्ते बंद है आपके पास, आप मिल नहीं सकते हो, आप सामने नहीं आ सकते हो, आप कॉल नहीं कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, and you're being tortured to you know, make you mad. You know, somebody's trying to make you mad, you know, mentally, you know, trying to torture you so much, or you're fighting that. So मेरे को जो कैरेक्टर सुनाया गया when I had gone for my look test, तो जब डायरेक्टर सुना रहे थे तो मेरे आंसू निकल रहे थे. जब वो नरेट कर रहे थे उसी समय मेरे आंसू निकल रहे थे, और वो मैं इतना फील कर रही थी. उस समय तक मैं फाइनलाइज नहीं हुई थी, और जब वो बता रहे थे तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे. उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैम ओके, कैन वी डू अ टेक. तो बस उसके बाद मैंने जो टेक दिया, उसके बाद जो मेरा रोना शुरू हुआ, तो मेरा रोना बंद ही नहीं हुआ. मतलब मैं करीब 5, 6, 7, 10 मिनट तक मैं रोती रही. एंड देन दे क्विकली गिव मी वाटर, दे सेंड फॉर कॉफी. मैं इतनी कनेक्ट हो गई थी.
and then obviously then they felt that okay, I am the one because I connected with the character so deeply, so I was finalized. But मैं इतनी ज्यादा डूब गई थी कि मुझे खुद बाहर आने के लिए ना मुझे मतलब मैं घर तक पहुंची हूँ तो मैं बहुत इतनी सैड फील कर रही थी, इतनी ज्यादा मतलब उस मूड में थी, और मतलब इतना I could really feel Savitri's emotions so deeply. So, you know, So मैम that's जैसे how. तो जैसे कि यू नो आप अभी बता रही थी कि आप लोग कैरेक्टर से इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, तो दैट वाज इवन माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि देयर आर टाइम्स व्हेन यू गेट सो डीप इनटू द कैरेक्टर, व्हेन यू फील लाइक कि जो कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, सो हाउ डू यू कम आउट ऑफ सच सिचुएशंस, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है मेंटली फिजिकली, सो हाउ डू यू गेट आउट सच सीन्स एंड सच इमोशंस, सो व्हाट डू यू डू? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जब भी मूड में रहते हैं, लाइक हम लोग को बोला जाता है लाइक दिस इज अ टेक्निकल टर्म, मूड में, एक्टर इज इन द मूड, मींस वो उस सीन के लिए तैयार है, दैट कैरेक्टर के लिए। स्पेशली अगर खाली ऐसे हंसी मजाक कुछ ऐसे डायलॉग बोलना, तो लोग तो अभी बातें कर रहे हैं, हाँ डायलॉग रेडी है, हाँ चलो चलो शॉर्ट एक्शन रेडी, तो आप तुरंत डायलॉग बोल देते हो। बट ऐसे सीन्स में जो एक्चुअली इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं, जिसमें आपको कनेक्ट होना पड़ता है, जिसमें आप डीप जाते हो, तो उसके लिए यू हैव टू बी थोड़ा डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी होल जो बिहाइंड द कैमरा एक्शन जो चल रहा होता है, जो पीछे बातें हो रही हैं, लोग हंस रहे हैं, especially when you're, so you have to be in your mood, in that character, in that feel, नहीं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, it's not possible, means it is not possible। ऐसा नहीं है कि एक्शन हाँ वो ऐसे थोड़ी ना होता है, you can't do that, you have to be in the flow, it has to come like in a flow, it has to be step by step, you know, so your emotions come like that। तो फिर वही मतलब होता है कि उसके बाद जब हमारा अगर इतना ज्यादा हम डीप चले जाते हैं, तो उसके बाद जब तक कि सब कुछ सारे शॉट ओके नहीं हो जाते, बिकॉज देयर इज क्लोज, देयर इज वाइड, देयर टू शॉट, ऐसे करके बहुत सारे शॉट्स हमारे लिए जाते हैं, उसी इमोशंस में हमें बहुत सारे शॉट्स देने पड़ते हैं, वो कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। तो उसके बाद व्हाट वी डू, फिर उसके बाद कॉफी पी लिया या कुछ कर लिया, और उसके बाद फिर डीप ब्रेथ लिया, और फिर व्हेन वी टॉक विद समबडी एंड लाफ, हो गया, कम आउट ऑफ इट, ऐसा हो जाता है। पर कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनली जब वो अंदर से जाते हो, मे बी यू नो उस दिन मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं वहाँ पे आई हैड जस्ट गॉन फॉर माय लुक टेस्ट, एंड दैट टाइम यू नो I had nobody to communicate. I came from Devlali just for this look test, and I was going back. So I was in my car and the driver was there, so I wouldn't be talking to my driver or anybody. So for a longer time, I was in that zone. Then probably when I called up my family, okay, I'm on my way, then we joked and we laughed, so thoda wo disconnect ho gaya. So this is how you're supposed to disconnect yourself. So, जैसे अभी ये शो में ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन था which you felt very challenging and you had to, you know, like really work on that scene, so ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन? मुझे एक्चुअली ये तो पूरा कैरेक्टर ही चैलेंजिंग था, तो उसमें सीन तो हर सीन में एक नया चैलेंजिंग मुझे फील हुआ फ्रॉम द डे वन में। आपको सबसे पहले मेंटल असाइलम में जो सीन्स दिखाए गए, अगर आप उसमें देखो तो उसमें आपको पागल नहीं जैसे बिहेव करना है कि आप पागल जैसे बिहेव करें, नो, यू हैव टू बी लाइक, आपको पागल करने की कोशिश की जा रही है, बट जस्ट बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल दैट यू वांट टू समहाउ मीट योर चिल्ड्रन नो मैटर व्हाट, यू आर ट्राइंग टू फाइट इट, सो यू आर गिविंग सेडेटिव्स, मगर आप फिर भी मे बी चीजों को भूल रहे हो, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही हो, आप स्लो हो रहे हो, लेकिन आप पागल नहीं हो, और आपके इमोशंस वही डीप, वो बचपन का याद करके आप इतने डेस्परेट हो, मतलब बहुत सारे इमोशंस एक साथ। तो वो तो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन उससे आगे नहीं जाना है। सर ने मुझे पहले ललित सर जो हमारे डायरेक्टर हैं,
उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, इससे लाइन से आगे मत जाइएगा, ऐसा करना है, आप समझ लीजिए बस, ठीक है. Then it, whatever, however I would have to perform, you know. So there are few things that I had to keep in mind कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं, you know, all that. तो उसके बाद फिर बाकी सीन्स आए, वो एक अलग लेवल के आए. फिर मिलने का आया कि मुझे बच्चों से मिलना. अभी वो बच्चों से मिलना है, लेकिन मैं पागल जैसे नहीं बोल सकती मुझे बच्चों से मिलना है. मुझे बच्चों से मिलना हैज टू बी डेस्परेशन. तो फिर वो मुझे बार बार वो बैलेंस करना पड़ता था कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ. सो every time it was challenging, every time every scene was challenging for me actually, क्योंकि उसमें कुछ तो नया था, कुछ और ऐड करना था उसमें, और कुछ अलग लेवल का इमोशन था एक्चुअली. तो दिस होल कैरेक्टर आई वुड से वाज रियली चैलेंजिंग. मैंने ऐसा कभी किया नहीं था पहले. This role really gave you a chance to portray something very new and challenging Yes. है, तो आपको भी बहुत कुछ portray करने का मौका मिला. So जैसे कि बात करें, आप लोग सब आउटडोर शूट के लिए गए थे, काफी टाइम तक पूरी कास्ट साथ में थी, इतने टाइम तक बाहर आउटडोर शूट हुआ. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग आउटडोर्स विद द होल कास्ट? और अगर कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक मेमोरी याद हो जो ऐसे याद करके लगता है कि हाँ यार वो दिन या फिर ये स्पेशल मोमेंट था, तो एनीथिंग दैट वुड लाइक टू शेयर. We had a lot of fun there. Basically, ज़्यादा मतलब मेरे सीन्स सबके साथ कम होते थे, क्योंकि मेरा तो दिखा रहा था कि मैं दूर से देख रही हूँ, छुप के देख रही हूँ. तो उन लोग के बाकी सारी कास्ट के तो बड़े शूट के समय भी बड़े मजेदार वो होते थे. मेरा तो बीच बीच में जब भी मेरे सीन्स आ रहे हैं तो मैं दूर से हूँ, मेरा अलग से शॉट लग रहा है. सो आई वॉज नॉट देयर विद देम. बट यस, मजेदार ये बात है कि मैं ऊपर से देख रही हूँ, मेरे रूम के नीचे में ही शूट चलती रहती थी. शादी हो रही है मेरी बेटी की, दिखाया था मेरी बेटी की शादी हो रही है. और यस, और उसमें मुझे इनवाइट तो क्या नहीं है, क्योंकि मुझे इनवाइट नहीं कर सकते थे, राइट. अब मैं ऊपर से देख रही हूँ, तो आई यूज्ड टू गो डाउन ऐसे, क्या है मेरे बेटे की शादी है, मुझे इनवाइट नहीं कर रहे हो तुम लोग और मेरे रूम के नीचे शूट कर रहे हो और पूरी नॉइस चल रही है. ऊपर से मुझे उठने की आदत सुबह 5 o'clock तक, और इन लोग की शूट चल रही है सुबह 6 बजे तक. नीचे से पूरी आवाज आ रही है, तो मैं पूरी रात सुन रही हूँ, पूरा शूट चल रहा है और फिर सुबह जब वो लोग सोने जा रहे हैं तो मैं उठ रही हूँ. इट वाज रियली फनी. और ऊपर से उसके अलावा यस, आई रिमेम्बर one day, that particular day only when my I think daughter was getting married. उस सीन के समय, अब पता नहीं कौन सा सीन था, आई थिंक सो, नहीं, एंगेजमेंट थी, मेरे बेटे की एंगेजमेंट ऐसा दिखा रहे थे. तो मैं जब नीचे गई तो आई वाज वेयरिंग लाइक, अभी सावित्री के कैरेक्टर में तो आप अलग हो, लेकिन वैसे मैं तो अलग हूँ ना. एज जसविंदर आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई ड्रेस अप इन अ डिफरेंट वे, आई एम अ डिफरेंट पर्सनालिटी. सो अभी मैं नीचे गई, अपना टी शर्ट एंड आई मीन अपना टॉप, एंड आई वाज वेयरिंग माय शॉर्ट्स एंड आई वेंट डाउन. तो आभा जी जो मेरी मदर इन लॉ बनी है, तो बोली, देखो सावित्री को देखो, इसीलिए तो मैंने इसलिए घर से निकाल दिया, देखो कैसे कपड़े पहने हैं. क्या मम्मी मैंने क्या पहने यार, ऐसे ही कुछ कुछ थोड़ी ना, वैसे नॉर्मल है, ऐसे तो मेरे से छोटे तो सब बाकी दुनिया पहनती है. तो it was so funny. And then Abha ji is that way, she's been mother to everyone. तो हमेशा अपने रूम में, एक दिन उन्होंने क्या पानी पूरी बनाया और एक दिन कुछ और बना, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो बना लेती थी और सबको बुला लेती थी कि आओ मैंने आज ये बनाया. बिकॉज़ शी कैरीड ऑल हर डेगची एंड एवरीथिंग देयर. इतना बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से. शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग. सो शी हैड, हर रूम वाज एक तरफ पूरा टेबल पे पूरे खाने के सामान सजे हुए थे, लिटरली सजे हुए थे. और ये वो पूरा फ्रिज पूरा भर के रखा था उन्होंने, टमाटर और सब्जियां वगैरह मंगवा के, फिर वो कभी जो हम लोग को प्रोवाइड होता था उसके अलावा भी शी वुड लाइक टू मेक समथिंग ऑफ हर ओन, तो वो करवा लेती थी. तो इट वाज फन, इट वाज रियली फन. आपको मतलब सो ये मेमोरीज सुन के मुझे इतना मजा आ रहा है. तो मतलब आई कुड रियली गेस कि आप लोग ने जो भी आपको टाइम मिला वहाँ स्पेंड करने का, यू ऑल हैड रियल फन देयर. Yeah, it was really amazing. भूल नहीं सकते इन बातों को, सच में. Such beautiful memories we have.
Hi, this is Jaswinta Gardner. Please like, comment, share, and subscribe to Famezo and catch me on one of the episodes.